Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the phrase. We have completed the first part of the phrase, its introduction, and the other parts like the phrase of adverb and phrase of adjective. We have completed the two parts, the two types of the phrase. Let's switch over to the third part of the phrase, and the third part of the phrase is called as the prepositional phrase. Let's see what is prepositional phrase, where is it used, and what are the methods used in it. So let's get it started. ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से बनाए जाते हैं ये कौन से फ्रेज होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं कि व्हाट डज द डेफिनेशन से। The group of the words which begin with preposition. The group of the words which begin with preposition, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो स्टार्ट होता हो preposition से and end with noun and with a noun and end with a noun is called and end with a noun is called the prepositional phrase. उसे prepositional phrase कहा जाता है। prepositional phrase कहा जाता है। ओके, prepositional phrase डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा है कि prepositional phrase क्या होता है, आइए देखते हैं कि prepositional phrase क्या होता है। prepositional phrase डेफिनेशन में जैसा कि लिखा हुआ है कि the group of the words which begin with preposition, ग्रुप का ऐसा अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता हो, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने के बाद वो एंड विथ अ नाउन और नाउन पर खत्म होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। आइए एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल दैट हाउ इज इट मेड इन द एग्जांपल्स। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। Examples of the prepositional phrase. Example number one है example के अंदर, number one है on the tree. On the tree, this is number one. Number two क्या है? Number two है over the mountain. Over the mountain. Number three क्या है? Let's see what is number three. Number three है in the car. In the car. Number four क्या है? Let's see what is number four. Beyond the universe. Beyond the universe. Beyond the universe. Number fifth कौन सा है? Number fifth है across the globe. Across the globe is also prepositional phrase. Across the globe is also called the prepositional phrase. This is number fifth. Number sixth कौन सा है? Let's see what is number six. Number six है through the ocean. Through the ocean. Number seventh क्या है? Number seventh है with the gun. This is number seventh. Number eighth क्या है? Let's look again. Number eighth. Number eighth कौन सा है? Number eighth है on the table. Number seven. Number eight. On the table. Number nine कौन सा है? Number nine है at the college. At the college. This is number nine.
नंबर 10 कौन सा है? नंबर 10 है अंडर द ट्री। अंडर द ट्री। नंबर 11 कौन सा है? नंबर 11 है beneath the plants, beneath the flowers, beneath the flowers. There are various prepositional phrase in English language. English language के अंदर बहुत सारे prepositional phrase हैं, हमने सिर्फ कुछ लिखे हैं। आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था। आज का जो हमारा टॉपिक था उसका नाम है prepositional phrase। prepositional phrase क्या होता है? आइए देखते हैं कि prepositional phrase क्या होता है। Let's look at the board. The group of the words which begin with the preposition. ग्रुप अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो preposition से स्टार्ट हो and end with a noun और noun पर end हो, noun पर खत्म हो, is called the prepositional phrase. उसे prepositional phrase कहा जाता है। मिसाल के तौर पर on the table, यहां पर on क्या है? on है p means preposition. tree क्या है? n noun. This is preposition, this is noun. over क्या है? over the mountain. over क्या है? preposition p. mountain क्या है? noun. तो यहां पर n लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है in the car. in क्या है? preposition. car क्या है? noun. तो यहां पर हम n लिखेंगे। इसी तरीके से beyond the universe. beyond क्या है? preposition. तो हम यहां पर p लिखेंगे। preposition तो हम p लिखेंगे। और यूनिवर्स क्या है? नाउन है, तो यहां पर हम नाउन लिखेंगे। क्योंकि ये नाउन पर खत्म हो रहा है इसीलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन पर खत्म हो रहा है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन और ग्लोब क्या है? नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, ग्लोब नाउन पर खत्म हुआ। ओके नेक्स्ट 6 थ्रू द ओशियन। थ्रू द ओशियन, थ्रू द ओशियन। थ्रू क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये p लिखेंगे। ओशियन क्या है? नाउन है, तो हम n लिखेंगे। इसी तरीके से विद द गन। विद क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन और गन क्या है? नाउन है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ और नाउन पर खत्म हुआ। ऑन द टेबल। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, p लिखा। टेबल क्या है? नाउन है, n लिखा। इसी तरीके से एट द कॉलेज। दिस इज एट द कॉलेज, नॉट द कॉलेज। एट द कॉलेज, तो एट क्या है यहां पर? दिस इज प्रीपोजिशन और कॉलेज क्या है? दिस इज नाउन, तो नाउन n लिखेंगे। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। दरख्त के नीचे, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, तो हम यहां पर p लिखेंगे। ट्री क्या है? नाउन है, तो यहां पर हम n लिखेंगे। इसी तरीके से beneath द फ्लावर्स। beneath क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्लावर्स क्या है? नाउन है। beneath द फ्लावर्स। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमारा जो आज का टॉपिक था वो प्रीपोजिशनल फ्रेज था जो कि कंप्लीट हो चुका है। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम उसके साथ कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ प्रीपोजिशन से लफ्ज को स्टार्ट करते हैं और नाउन पर खत्म करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशंस के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है। डेफिनेशंस के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। If you have any query, any question, any confusion regarding prepositional phrase, अगर prepositional phrase के बारे में आपको कोई confusion हो, कोई question हो और कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.